السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 112 ہے. کل ہم نے اس حدیث کے آخری حصے میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، جس کو آپ تقدیر کہتے ہیں. تو اس پر میں نے مختصر گفتگو کی تھی. آج ہم دو باتوں کا جواب دینا چاہتے ہیں. اگر یہ بات میں سمجھا لے گیا تو آپ کے ہو سکتا ہے زندگی بھر کا کنفیوژن ختم ہو جائے، لہذا بہت الرٹ ہو کر کے سنیے گا. سب سے پہلا سوال میں نے خود کیا ہے جو لوگوں کے پاس کہ یہ تقدیر لکھنے کا مطلب کیا ہے. چاچا ایسا نہیں کرے، یہ تقدیر لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر لکھنے کا جو مطلب ہے، انسان اور جن کو چھوڑ کر، غور سے سنیے گا، انسان اور جن کو چھوڑ کر یہ ایک پلاننگ ہے رب ذوالجلال کی پوری دنیا کو کیسے چلایا جائے. اس میں انسان اور جن شامل نہیں ہے. پہلی پلاننگ میں یہ اگر ایسا ہوتا کہ جیسے سورج کو پیدا کر کے چھوڑ دیتا، چاند کو پیدا کر کے چھوڑ دیتا، گلیکسی ایک پورا نظام ہے، تو یہ ایک دن بھی چل نہیں سکتے تھے. سب ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں اور دنیا اسی دن، پہلے دن ہی کیا ہوتی، جس دن پیدا ہوئی تھی اسی دن برباد ہو جاتی. یہ پروردگار عالم نے انسان اور جن کے علاوہ پوری کائنات کی پلاننگ کے لکھنے کا نام تقدیر ہے. یہ ایک بہترین چیز ہے. کوئی بھی کام کو اگر آپ پلان سے چلائیں گے تو اس کا ایک رزلٹ ہوگا، وداؤٹ پلان چلائیں گے تو اس کا ایک رزلٹ ہوگا. یہ پلاننگ کی کیوں کہ سورج ایسے نکلے، ایسے چلے، اتنا ٹمپریچر پہنچاوے، تو اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ جس کو پیدا کرنا ہے اصل، وہ کون ہے؟ وہ آدم ہے اور ان کی اولاد ہیں. ان کو سیوٹیبل رہنا، ان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے آرام چاہیے، یہ دنیا ان کے لیے خوب فائدے مند ہو، اس کے تحت یہ پلاننگ کر دی اللہ نے کہ ہمارے بندوں کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس وجہ سے اس نے پلاننگ کر دیا. لہذا اس پلاننگ کو پروردگار عالم کہتا ہے اس کائنات کے لیے، انسان اور جن کو چھوڑ کر، اس کے لیے کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا اس کو پیدا کیا ہے اور ان کو ہدایت بخشی. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ گائیڈ کیا ہے کہ ہاؤ ٹو رن، کیسے چلیں گے آپ، اسی کا نام ہدایت ہے. قرآن مجید کہتا ہے قال ربنا الذی آتى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو گائیڈ کر دیا کہ آپ کو ایسے ہی چل. وہ مجبور ہے، سورج کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے نکلنے کا ٹائم خود سیٹ کر لے، یہ اس کے بس کرنی ہے. جتنی چیزیں دنیا میں ہیں انسان اور جن کو چھوڑ کر، سب مجبور محض ہیں، اور وہ مجبور کیا گیا ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. بات سمجھائی؟ اب اس دنیا کو کبھی ڈسٹرب ہوتے آپ دیکھتے ہیں، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سونامی آ جاتی ہے، کبھی طوفان آ جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب ہمارے فائدے کے لیے رکھا گیا ہے تو یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جب پوری کائنات کی پلاننگ ہی ہمارے لیے کی گئی ہے، ہم انسانوں کے لیے کی گئی ہے. آپ دیکھیں جماعت والے ایک جملہ بولتے ہیں کہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم اللہ کے لیے بنائے گے. وہ وہی بات ہے، وہ وہی جملہ ہے. اس کو تھوڑا سا میں اور ایکسپلین کر کے، اب ساری کائنات کی جو پلاننگ اللہ نے کیا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے، ہمارے بندوں کے لیے سوٹیبل رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ گھر کی وہی پلاننگ کرتا ہے کہ گھر والوں کو تکلیف نہیں ہو. اچھا جو پلانر ہے گھر میں،
उसको आइडिया होता है कि मेरे घर में हर महीना 20 किलो चावल लगता है, तो 20 किलो चावल ला के रख देता है कि घर वाले पर, क्योंकि उसको अपने घर वालों से प्यार है, ज्यादा घर की जितनी उसकी ताकत होती। आप मर्द परेशान क्यों है बेचारा, रिश्वत क्यों लेता है, हराम क्यों करता है, सिर्फ उसके दिमाग में है कि हमारे बीवी बच्चे सुकून से रहे, उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करता है वो। लेकिन है मकसद वही कि मैं घर का मालिक हूं, लिहाजा घर वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बेचारा सारा पापड़ बेलता है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन सारी कोशिश क्यों, क्योंकि उसको अपने घर वालों से प्यार है। अल्लाह का घर क्या है, ये पूरी दुनिया परवरदिगार आलम की एक कुनबा है। अल खल्क़ अयालुल्लाह, पूरी कायनात अल्लाह का कुनबा है। आप अपने कुनबे को जिस तरीके से चाहते हैं कि सब चीज प्लानिंग से रहे, महीने भर की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो क़यामत तक के लिए प्लानिंग किया है, क्योंकि वो रब है। आप उतनी लंबी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर वीकनेस है, कमजोरियां हैं। रब्बे दुल जलाल ने इसलिए चूंकि उसको आपसे प्यार है, उस प्यार की बुनियाद पर ही पूरी दुनिया को उसने सजाया है कि ऑक्सीजन कैसे चाहिए, पानी कितना चाहिए, चावल कितना पैदा होना चाहिए, टमाटो कितना, सब कुछ। ये जो आप शरारत देखते हैं कि कभी प्याज करे, ये सब इंसान करता है, रब की तरफ से कुछ नहीं है, सब हमारी शरारतें होती। वो एक इकोनॉमिक की बहस है, कैसे करते हैं वो एक अलग। अब दुनिया में जो डिस्टर्ब होती है कि जलजला आ जाता है, कहत आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो इसकी एक वजह, सुनामी कहाँ आती है, समंदर में। समंदर में आने के बाद उसके नुकसानात हमको भी कभी पहुंचते हैं। हकीकत क्या है कि अंदर की जो मखलूक है, कहाँ, समंदर की, वो इस दुनिया से, इस जमीन से कहीं ज्यादा है। उनकी शरारतों को कंट्रोल करने के लिए वहां सुनामी लाई जाती है। जैसे आप जुल्म करते हैं ना, ऐसे पता चला कि अंदर कोई ऐसे जानवर पैदा हो गए हैं कि जो जुल्म कर रहे हैं। उन जुल्म को आपको पता ही नहीं चल रहा है, वो तो कायनात है। तो आज भी आपको मालूम है कि दुनिया के एक ही हिस्से पर आप आबाद है, 3 हिस्से में क्या है, समंदर है, पानी है। तो एक वजह क्या होती है कि अंदर करप्शन हो गया है, गड़बड़ हो गया है, उसको कंट्रोल, परवरदिगार आलम के कंट्रोल करने। कुरान में भी इसका जिक्र है कि जब जुल्म बढ़ जाता है अल्लाह के रसूल, तो हम जालिम के जरिए जुल्म को कंट्रोल करते हैं। किसके जरिए, जालिम के जरिए जुल्म को कंट्रोल करते हैं। जब हलाकू ने मुसलमानों को मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा, कई लाख मारा, तो उसने तकरीर किया, उसने कहा तुम्हारे नबी ने ये बात कही है कि जब तुम इस्लाम से हट जाओगे तो तुम पर जालिम मुसल्लत कर दिया, जब मैं वही जालिम हूं। उसने कहा मैं वही जालिम हूं। तो पता ये चला कि जुल्म को कंट्रोल करने के लिए जालिम पैदा किया जाता है रब की जानिब से, वरना कोई जालिम इतना बड़ा नहीं जो रब के ऊपर चला जाए। उसको भी पावर किसने बख्शा है, परवरदिगार आलम ने बख्शा था कि तुम सीधे रहो। तो समंदर के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, जिसको प्रॉब्लम से मुराद वहां की मखलूक डिस्टर्ब होती है, लिहाजा उनको कंट्रोल करने का रब्बे जुल जलाल के पास एक तरीका। ये एक छोटी सी वजह है। 3 बुनियादी वजह और है, उसका नुकसान हमको भी होता है। 3 वजह है कि जिस वक्त दुनिया में प्रॉब्लम्स होती है, चाहे कहत के जरिए, जो भी जरिए से होती है, अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदगी करने में शरारत शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा है कि ज़िना हराम है, ज़िना होने लगता है खूब। परवरदिगार आलम उस ज़िना को कंट्रोल करने के लिए दलदल अला के बतौर सदा परवरदिगार आलम दुनिया को डिस्टर्ब करता है, वो सदा के तौर पर होता है। एक वजह होती है। दूसरी वजह क्या होती है कि आपको आजमाना चाहता है, आप ये समझते हैं कि ऑटो सिस्टम पर चल रही है, सूरज निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो बताना चाहता है कि ऑटो सिस्टम पर कुछ नहीं है, मैं जैसे चाह रहा हूं वैसे चला रहा हूं। वो अपनी कुदरत का मुजाहरा करना चाहता है, अपनी कुदरत को शो करना चाहता है, अपनी ताकत और पावर को शो करना चाहता है, ताकि इधर उधर भटकने के बजाय आप उस रब की तरफ रुजू करें। जब प्रॉब्लम जब आ जाती है तो मस्जिदें भरने लगती कि नहीं लगती हैं?
जितना इंसान की लाइफ, जितना इंसानी जिंदगी स्मूथ आसानी से गुजरेगी, उतनी वो शरारत करेगा। फिर से जुमले को सुन ले, आपकी जिंदगी एकदम आसानी से चल रही, सारे मसाइल एकदम, उतना ज्यादा आप तकब्बुर करेंगे, उतना ज्यादा आप शरारत करेंगे, खुदा बन जाएंगे। उस खुदा ना बने इसलिए आपकी जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम रब्बे दुल जलाल डालता रहता है। और जैसे प्रॉब्लम, नमाज में देर तक बैठकर दुआ कौन करता है? कभी मालदार को देखा है जो खूब करोड़पति बैठकर दुआ करता है? दुआ करता है वो बंदा जो परेशान है। तो परेशानी रुजू इल्लाह कराती है। दुआएं मांगते हैं, बैठते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। कबीर दास ने शेर कहा है कि दुखमा सुमिरन सब करें, सुखमा करे न कोई। कहता है दुख जब होता है तो सब खुदा को याद करते हैं, सुखमा करे न कोई। जब सुख होता है तो कोई रब को नहीं याद करता है। जे सुखमा सुमिरन करे, दुख काहे का होए। अगर हालात अच्छे थे उस वक्त खुदा को याद करते रहते तो दुख कभी तुम्हारी जिंदगी में आता ही नहीं। दुख तो लाया गया है ताकि रुजू हो। तो दूसरी वजह दुनिया को डिस्टर्ब करता है कि तुम रुजू करो उसकी तरफ। तो एक बतौर सजा है, एक बतौर ताकत है कि ये मेरी ताकत है और मेरी ताकत को देख करके आप मेरी तरफ रुजू करें। और तीसरी, किसी फील्ड में अगर दुनिया वाले, गौर से सुनिएगा, अपने आप को स्मार्ट बनने लगते हैं कि हम बहुत ज्यादा जान गए हैं मेडिकली लिहाज से या साइंस के लिहाज से, उनको झटका देने के लिए आप देखें 24 घंटे 48 घंटे पहले जलजला वाले, मौसम डिपार्टमेंट वाले बता देते हैं कि जलजला आने वाला है। अच्छा, कितनी अजीब बात है। ये मालूम हो गया है कि जलजला आने वाला है, लेकिन बेचारा इतना मजबूर है कि जलजले को रोक नहीं सकता। मालूम है कि जलजला आने वाला है, लेकिन जलजले को रोकने की ताकत उसके अंदर मौजूद नहीं है। जैसे कोई आदमी ट्रेन की पटरी पर बांध दिया जाए और उधर से ट्रेन आ रही हो, जान रहा है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन निकलने की कुव्वत नहीं है। तो परवरदिगार आलम, जब दुनिया बहुत स्मार्ट, आप देखें हमेशा एक बीमारी इस दुनिया में रहेगी। तमाम डॉक्टर्स को मैं बात बोलता हूं, हमेशा इस दुनिया में एक बीमारी रहेगी जो डॉक्टरों को चैलेंज करती रहेगी। मुझे क्या है, जैसे ही डॉक्टर्स किसी एक बीमारी पर रिसर्च करके कंट्रोल कर लेते हैं, वो समझते हैं वी आर वेरी ग्रेट, खट से दूसरे पैदा करता है, देखो क्या है। क्यों? वो जो बीमारी की रिसर्च भी कर देते हैं, वो भी हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि आपने फरमाया लिकुल्ली दाइन दवाउन, कि हर मर्ज का की एक दवा है। इसमें वो बताता है कोई मर्ज दुनिया में ऐसा ना आप जान पाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया लिकुल्ली दाइन दवाउन, हर मर्ज की एक दवा है। लेकिन ये आपको बता दे, ये दुनिया कयामत तक एक मर्द हमेशा, मिनिमम बता रहा हूं, वैसे तो कई हो सकते हैं, मिनिमम एक मर्द ऐसा जरूर रहेगा कि वो लोग जो स्मार्ट बनते हैं वो बोल भैया कुछ नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। कभी कभी सारा चेकअप करता है डॉक्टर, करता नहीं करता, और आखिर में क्या बोलता है, वो कहता है कि मेरा दिल घबरा रहा है, ये है वो है, मिनरल्स ये वो सब रिपोर्ट नॉर्मल है। उसको ये नहीं पता चाहता है कि ये क्या है, ये क्यों करता है। अल्लाह बताना चाहता है कि तेरी सारी स्मार्टनेस मेरे एक स्क्रू ढीली कर देने पर फेल है, जो चाहे कर लो। जबान है जबान है, बोल नहीं पाता है, देखा है, जबान है, आपसे अच्छी जबान रखता है, बोल नहीं पाता है। ये सब क्या है, ये अल्लाह ताला बताना चाहता है कि अगर मेरे सामने तुम स्मार्ट बने तो मैं तुम्हारी स्मार्टनेस को ऐसे चकनाचूर कर दूंगा, मेरे सामने होशियार बन। तो ये तीन बुनियादी वजह होती है जिसकी वजह से परवरदिगार आलम इस दुनिया को डिस्टर्ब करता रहता है। तो पहला सवाल क्या था मेरा कि तकदीर लिखी क्यों गई है। तो मैंने बताया कि इंसान और जिन के अलावा जो तकदीर लिखी गई है उसका मतलब है इस दुनिया की प्लानिंग करने का नाम रब्बे दुल जलाल ने कहा है कि मैंने सब कुछ लिख रखा है,
वजफ़तिल क़लम, जो उस हदीस में आया कि लिखा गया है और वो सूख चुकी है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जलजला आना है, कोई माई का लाल जलजले को रोक नहीं सकता। तो जैसे समंदर में डिस्टर्बेंस होता है जुल्म को ऐसे जमीन के नीचे भी गड़बड़ियां होती हैं। बहुत सी मखलूक जमीन के नीचे है, उनको भी कंट्रोल करने के लिए आपका हमारा स्टेटस ही नहीं है, आप और हम इस लायक ही नहीं है कि परवरदिगार आलम अपनी प्लानिंग के राज को आपके सामने खोले। राज को खोलेगा, जैसे एक यूकेजी के बच्चे को टेक्नोमेंट्री पढ़ाई जाए तो बताइए क्या होगा। यूकेजी के बच्चे को टेक्नोमेंट्री पढ़ाई जाए, टेक्नोमेंट्री एक सब्जेक्ट है, लेकिन उस्ताद जानता है कि ये इस लायक ही नहीं है। आप भी ऐसे ही हैं, यूकेजी के बच्चे हैं परवरदिगार आलम की निगाह में, आप टेक्नोमेंट्री समझ नहीं सकते, इसलिए आपको टेक्नोमेंट्री बताता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके पास टेक्नोमेंट्री सब कुछ उसे, लेकिन उसे मालूम है कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम्हारी सलाहियत कितनी है, उस लिहाज से तुम्हारे साथ बात करता रहता है। बात समझे मैंने? इसीलिए रब्बे जुल जलाल जब इस दुनिया की मिसाल देता है तो कहता है अपने बारे में कि मुझे जानना चाहते हो मैं कहाँ हूं, कहता है आसमान देख लो। आसमान देखने के लिए आपको लंदन जाने की जरूरत नहीं है, कहता है जमीन देख लो, कहता है इससे निकलने वाले पौधों को देख लो। वो ऐसी मिसालें छोटी छोटी देता है, वो बहुत बड़ी मिसाल है, लेकिन आपके हमारे दिमाग में आ जाए, लिहाजा वो इन मिसालों को समझाता है। वो कभी बड़ी मिसाल लेकर के नहीं आता है, उसे मालूम है कि IQ का जो परसेंटेज है वो 1 से लेकर 100 तक है। वो एक वाले को मद्देनजर कर रखकर बात करता है ताकि 99 वाला खुद ब खुद समझ जाएगा। बात समझे मेरी? ये रब का कमाल है। एक सवाल। दूसरी बात, ये इंसानों और जिनों की तकदीर ये क्या है? इंसान, एक जुमला पहले बोल रहा हूं, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इंसान और जिन की तकदीर का मतलब ये होता है कि अल्लाह ने अपनी नॉलेज की बुनियाद पर आपके बारे में लिख दिया। अल्लाह का इल्म तकदीर है, नहीं समझे बात? एक डॉक्टर है, कैंसर का स्पेशलिस्ट है, वो सारे सर्कमस्टेंसेस देख करके बोलता है कि ये 1 महीने का मेहमान है। क्या बोलता है? 1 महीने। किस बुनियाद पर उसने कहा है? अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे की बुनियाद पर उसने कहा है कि ये 1 महीने का मेहमान है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने में न मरे, और ऐसा भी हो सकता है 1 महीने में मर गया। अब 1 महीने में मर गया, अब ये बंदा जिसके अब्बा मर गए 1 महीने में, जाकर इसने केस में कोर्ट में केस कर दिया, FIR करा दिया कि ये इनके कहने की वजह से मेरे अब्बा मरे हैं। अब बताइए ये FIR कराना सही है? कुछ भी सही नहीं। उसने अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह बता दिया कि 1 महीने मर जाएगा, तुमने उठाकर उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि साहब ये डॉक्टर ने हमारे अब्बा को मार दिया। डॉक्टर ने अब्बा को नहीं मारा है, डॉक्टर ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक बात कही थी। तो इंसान जब किसी के फ्यूचर के बारे में बात करता है, गौर से सुनिएगा, इंसान जब किसी के मुस्तकबिल के बारे में बात करता है तो उसकी बुनियाद उसका तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है। परवरदिगार आलम आपके बारे में जो बात करता है वो अपने इल्म की बुनियाद पर करता है, लिहाजा उसमें गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। वो इल्म क्या है? आप ये जो पैदा हुए हैं इस जमीन पर, ये आपकी रीबर्थ है, दूसरी बर्थ है, ये पहली बर्थ नहीं है। सबसे पहले जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो सबको पैदा किया, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ये तो कुरान की आयत है, सब पैदा किए गए। उस वक्त आप जो कुछ भी करने वाले थे, आपकी पूरी मूवी फास्ट गुजारी गई कि अगर ये 80 साल जिंदा रहेगा तो क्या क्या करेगा। वो जो आपने उस वक्त किया था उसी को लिख दिया है अपने इल्म की बुनियाद पर, उसी को बोलता है कि मैं तकदीर लिख दिया हूं। नहीं समझे? फिर से बोलता हूं। जैसे एक बॉल, एक छोटा सा गेंद मैं टेबल पे रखता हूं, यहां रखता हूं, और उस बॉल को थोड़ा से पुश कर देता हूं, बॉल चलता है, ऐसे 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 आके गिर जाता है। जैसे जैसे वो बॉल चल रहा है वैसे मैंने पेपर पे निशान बना दिया और पेपर फोल्ड करके रख दिया। अब आपको दिखलाता हूं कि देखो ये बॉल अगर यहां से चलेगा तो ऐसे ऐसे चलेगा,
वो पहली मरतबा जो चला था उस पर मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने उसको आजाद छोड़ दिया था। वो जो कुछ जैसे बॉल हरकत किया, जिस स्पीड में किया, जिस तरह घूमा, जैसे घूमा, मैंने पेपर पे नक्शा बनाते हुए अब रख दिया। अब मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि ये बॉल ऐसे ही चलेगा, पेपर दिखला रहा हूं। तो परवरदिगार आलम ने आपके और हमारे जिन और इंसानों के बारे में कि ये पैदा होंगे तो क्या करेंगे, ये पहले दिन आपने जो किया है वो लिख दिया है, उसी का नाम तकदीर है। आप जो समझ रहे हैं कि मैं मजबूर हूं, उसका जवाब हम कल देंगे इंशाअल्लाह, कि कुरान मजीद कहता है हम जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं, जिसे चाहते हैं गुमराह करते हैं। अब एक बंदा सोचता है कि जब अल्लाह ही हिदायत नहीं दिया तो अपनी क्या गलती यार, अल्लाह हिदायत ही नहीं दिया, मैं क्या करना। ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है, कल हम इसका जवाब देंगे। लेकिन इंसानों की और जिनों की तकदीर का मतलब अल्लाह ने अपने इल्म और नॉलेज की बुनियाद पर जो लिख दिया है कि ये बंदा ये करेगा, इंसान बोलता है ये करेगा, ये होगा, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर गलती होने के चांसेस हैं। रब्बुल जलाल इल्म की बुनियाद पर बोला है, नॉलेज की बुनियाद पर अपने बोला है, लिहाजा उसके बताए हुए पर गलती होने के कोई चांसेस नहीं। इसी का नाम तकदीर है, जिसको कहा जाता है कि आपकी तकदीर लिखी हुई है। आप मजबूर नहीं है कि ये काम करें। आपने पहले दिन जो काम किया था, जब आजाद किए गए थे, उस वक्त जो आपने किया था, यही आप रीप्ले कर रहे हैं। आपको पता, इसीलिए कुरान मजीद कहता है कि जब सबको पैदा किया हमने तो मैंने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा रब कौन है। सब चूंटी के मानते कुरान में आता है। सब ने मिल करके कहा कि आप हमारे अल्लाह हैं। ये वही बर्थ है जो ओरिजिनल बर्थ है। उसके बाद री बर्थ आपकी है जो आप जमीन पर है, फिर उसके बाद मर जाएंगे, फिर री बर्थ होगी। तो ये ऐसे 4 सिस्टम होगा। लिहाजा उसी नॉलेज की बुनियाद पर जो अल्लाह ने लिखा है, इल्म की बुनियाद पर जो लिखा है, उसका नाम तकदीर है। अब 2 बातें हम इंशाल्लाह और करेंगे, जिंदगी रहेगी तो। पहला बात ये कि ये अल्लाह जो कहता है मैं जिसे चाहता हूं हिदायत देता हूं, इसका क्या मतलब है। और दूसरा, लोग कहते हैं कि अगर मैं, कुरान में भी इसका जिक्र है, कुरैश ने भी इसलिए आप क्वेश्चन किया है कि अल्लाह अगर चाहता तो हम कुफ्र न करते, अल्लाह चाहा लिहाजा हमने कुफ्र किया, इसका क्या मतलब है। वो दोनों बातें इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।